انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حنیف بھائی نے ایسا کیا ظلم کیا اپنی بیوی کے ساتھ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا غلط، اور جب شام کو گھر واپس گیا تو نہ بھابھی تھی اور نہ ان کی بیٹی شیزہ۔ السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، صبح بخیر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر وعافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ تو پھر سے ایک نیو صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی ہو گیا حاضر۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، سکپ بالکل نہیں کرنا، ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے۔ صبح کی روٹین ہماری شروع ہو چکی ہے، تو صبح کی روٹین آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ٹھنڈ میں اضافہ ہے کیونکہ ایسا جو ہے نا وہ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، گرمیاں تو اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ صبح کے ٹائم اور رات کو کافی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اور یہ دھان کی فصل کے اوپر اور سارا آپ کو پانی دکھائی دے رہا ہوگا، کافی جو ہے نا شبنم پڑ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ۔ یہ شٹرنگ والا آیا ہوا تھا، یہ اس کے ایرے جو بنیاد ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ بھیم ڈلے گا، اور یہ پلر وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں نا یہ ان کی بھرائی کرنی ہے۔ پہلے شٹرنگ کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی بھرائی ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے نا چنائی ہوگی اوپر۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہے میرا چھوٹا، وہ دکان پہ کھڑا ہے، تو اس سے آپ بات چیت کر لیں، کیونکہ اس کا کام ہے وہی کروا رہا ہے، تو پھر کام دیکھ کر بات چیت کریں گے کہ کتنا وہ پیسے لیں گے اس کی بھرائی کے۔ یہ پلر جو ہے نا یہ کنکریٹ سے بھرائی ہوں گے، یہ 6 پلر ہیں، اور باقی اس کے اوپر جو ہے نا یہ بھیم ڈلے گا، تو حساب کتاب کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھرائی کروائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اوپر چنائی ہوگی۔ تو اللہ خیر کرے جی، چلتے ہیں اندر اور صبح کی روٹین آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تندور گرم ہو رہا ہے اور ابھی جھاڑو لگایا جا رہا ہے اس فین پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تندور بھی جل رہا ہے۔ ہاں جی، کوشش ہے کہ جلدی جلدی یہ جل جائے، ناشتہ ریڈی ہے، پھر بچوں نے جانا ہے۔ ناشتہ ریڈی ہے؟ ریڈی کر لوں ناشتہ، کام تو میرا ختم ہو گیا، بس یہ جھاڑو اس جگہ کا جھاڑو رہتا ہے، بس باقی کام ختم ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे और अल्लाह ताला हमारी परेशानी भी दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल समझ आलमीन। नहीं आती बिना कहाँ से शुरू करे काम और कहाँ पे ख़त्म करे। काम तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग जगह पे नहीं है। हाँ यार बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ताला बस बेहतरी अल्लाह ताला रहम करे। बहुत बड़ी परेशानी है आप सब बन गई, देख भी रहे होंगे। क्या करेंगे, काम तो करना है बच्चों के लिए, ये नाश्ता वगैरह, और बच्चे जाते हैं स्कूल। अभी तो खुबैब और अभी फिर सो गए, उठे भी थे फिर सो गए। पढ़ के फिर सो गए? हाँ फिर सो मस्जिद गए। गए थे यार, सुबह के टाइम ना सोने दिया करें उन्हें। इस टाइम सोना नुकसानदेह होता है यार। आपको तो पता है, जितना मैं कहती रहती हूँ कि ना सोएं, फिर वो जल्दी जल्दी आकर रजाई और का सो जाते हैं। ठीक है। किधर सोया है उसे, वो छुपा हुआ है कि पता किसी को ना चले। अच्छा, वो सुबह सासू माँ के कमरे में सो रहा है। इस टाइम बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। पट्टों का नुकसान है, दिमाग का नुकसान है। 10 बजे के दरमियान जो है ना, बिल्कुल मन्ना है कि बंदा ना सोए। मैं इनको जगाता हूँ, उठाता हूँ, नाश्ता वगैरह करके फिर स्कूल जाएंगे। और तंदूर भी अभी जल रहा है। ये पहले जाएगा, दूध ले आएगा। बस मैंने ये काम मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो, ये करूँ घर का, फिर जो है ना जो टेंशन बनी हुई है उसका भी कुछ करूँ। हाँ, अल्लाह ताला खैर करे। रब्ता करते हैं, अल्लाह करे कि आज भाभी का और शीज़ा का पता चल जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। हनीफ भाई तो बेचारा काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा। वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो चुका है। तो आज कोई रिश्तेदारों का वो कह रहे थे कि वहाँ का जो है ना फिर पता करते हैं, अल्लाह करे कि वहीं पर हो, आज मिल जाए। वरना हनीफ भाई की हालत जो है ना वो बिगड़ती जा रही है बेचारे अल्लाह की। खैर करे, अल्लाह करे कि भाई की तबीयत कुछ बेहतर होगी, उसकी तबीयत बेहतर होगी तो वो गाड़ी चलाएगा। अल्लाह ताला बेहतरी आपको तो फरमाएगा। चलाना नहीं आती ना, अल्लाह तो ताला अल्लाह ताला बेहतरी बेहतरी करेगा करे पे उसकी तबीयत फिट होगी तो फिर हम निकलेंगे ढूंढने के लिए। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करेगा, आज उनकी तबीयत बेहतर ही होगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ का दवाई तो ले हाँ, दवाई वगैरह कल ले आए थे, कुछ ड्रिपें वगैरह लगी थी और दवाई वगैरह भी डॉक्टर ने दी है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, दुआ है, दुआ ही कर सकते हैं, और तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम देखिए आपके सामने है, जो हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे बस में बस ही दुआएं हैं, और जो ढूंढना है वो तो हम ढूंढ रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। पहले मैं बच्चों को जगाता हूँ, आप झाड़ू वगैरह लगा लो। हाँ, मैं झाड़ू लगा के बच्चों को जगाया और तैयार हूँ, क्योंकि तो 7:30 बजे स्कूल लगता है, फिर उन्हें तैयार भी होना। मैं जगाता हूँ उनको। ये पता नहीं क्यों इस टाइम सो जाते हैं। कहाँ पे है खुबैब? इधर ही सोया हुआ था। इधर तो नहीं है। बस वो उठ गया शायद, आपकी आवाज़ सुनी शायद उठ गया। हबीब कहाँ पर है? अभी तो भी उसी कमरे में था जहाँ पे सोते हैं। हबीब भी नहीं है यार। बस वो आपकी आवाज़ सुनी तकरीबन वो उठ गया। किधर उठ के चले ये गए? शूज आपके नीचे पड़ा था, ये अभी पूरा कर। ये 4 पे के नीचे तो नहीं बढ़ गए? नहीं यार, 4 पे के नीचे क्यों बढ़ेंगे? इधर नहीं है यार, दोनों नहीं है। इधर इधर भी नहीं। तो आपकी आवाज़ है, शायद वो जल्दी जल्दी उठकर वॉशरूम चलेगा, इस वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है। अच्छा हाँ, चलें, शुक्र है उठ गए पहले ही आवाज़ सुनकर। बस तंदूर अभी जो है ना देर है, कुछ देर तक इंशाअल्लाह ताला ये रेडी हो जाएगा। तो सालन तो मैंने नहीं बनाया था, वो सालन पड़ा है थोड़ा सा, तो इधर से आया था ना हाँ भाभी के घर से, आलू का सालन। बस वो लस्सी के साथ, मैं तो लस्सी के साथ कर लूँगा नाश्ता। चलो, हाँ मैंने फूल सोचा पहले पूछ लूँ आप किस चीज़ के साथ नाश्ता करते हो। वैसे कल नाश्ता किया था, शाम को ऐसे रोटी भी थी, सालन भी था, इधर उधर से ले आए थे, लेकिन फिर भी नहीं खाया। हाँ, बस थोड़ा बहुत तो खाना खा पाया, क्योंकि अजीब सी तबीयत बनी हुई है, खाना भी नहीं खाया जा रहा अब। चलें। करा तो कॉल आई थी सिस्टर की, तो वो कह रही थी कि आप जो ना अनिल भाई को कहें अपनी अम्मी के घर चला जाए, इधर अकेला ना हो।
उसकी अम्मी इधर ही है, हाँ भैया के पास होती है। हाँ इधर ही और आ उधर जाते हैं। बेचारी कैसे लेकर जाए, उसकी वो जेठानियाँ वगैरह सब उधर होती हैं, वो हमारे घर पे नहीं आया तो वहाँ कैसे जाएगा। हाँ वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, फिर परेशानी बनती है, अपना घर अपना होता है ना। सुलेमान वापस आ गया है और उसकी बहू भी आ गई है। सुलेमान जैसे उसने सुना कि अम्मी और शीजा नहीं है तो वो बेचारा वहाँ से कर्ज लेकर वो बेचारा घर आ गया है। बस कुछ फैमिली जो है घर पे, उसकी बहू, उसके 2 बेटे और भैया। हाँ 4 अफराद तो हैं वो घर के। चले अल्लाह खैर करेगा। आज इंशाअल्लाह ताला जाएंगे जहाँ का सुनना है, वो फ़ोन आया था ना अनिल भाई को, हाँ, तो आज वहीं पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह करे कि वहीं पर हो और मिल जाए हमें। उम्मीद तो यही कर रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, वो जहाँ के में सलामत हो और आज इंशाअल्लाह। इनका पता चल गया हम उन्हें ले जाए, इंशाअल्लाह ताला, घर बैठी आकर ले जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हाँ तो दूर जो है ना बस रेडी होने वाला है और चटाई वगैरह इसने बिछा दी है, लस्सी बाकी का सामान जो है ना इधर बाहर रख दिया है। अब रोटी लगाएंगे थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ताला। बस ये आखिरी लकड़ियाँ जल रही हैं। बस इंतज़ार है ये चिट्टा हो जाए। अगर ये चिट्टा ना हो ना तो फिर रोटियां जो है ना सारी गिर जाती हैं, कच्ची कच्ची रोटियां। हाँ क्योंकि अभी फ़िलहाल ये ब्लैक दिख रहा है, नज़र आ रहा है, हाँ अभी सफ़ेद नहीं हुआ सही तरह जैसे से। ये ठंड होती है ना, ये ठंड की वजह से भी जल्दी चिट्टा नहीं होता। हाँ क्योंकि सारी रात ये बाहर खड़ा रहता है ना, इसलिए फिर वो शबनम जो पड़ती है उसकी वजह से गीला भी हो जाता है और जल्दी फिर जो है ना ये चिट्टा नहीं होता। ये जब तक चिट्टा नहीं होगा तो रोटियां नहीं लगेंगी रोटियां सही। नहीं लगेगी। इसे जो ना याद दिलाना, अभी अंदर रखेंगे, सुबह के टाइम बाहर निकाल लेंगे, हाँ इसे अंदर रखेंगे। वैसे ऊपर रखेंगे फिर भी ठंडा क्या है, ये तो नहीं है ठंडा के, लेकिन शबनम से तो ये बच्चा रहेगा ना। नहीं, शबनम से हाँ इधर अंदर रख देंगे बरामदे में इस जगह पे। ढक्कन वगैरह दे देती है। अच्छा हाँ ये इस तरीके से तो बच जाता है, लेकिन ये ठंड तो नहीं। ठंड तो पड़ रही है ना, अब रात को काफ़ी ठंड होती है इसलिए काफ़ी ये ठंडा हो जाता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला इसे जो है ना इसे बरामदे के अंदर रख देंगे। पेड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप रोटी लगाओ, नाश्ता करें, फिर पता करें हमारे भाई वालों का क्या बनना है बेचारों का। अल्लाह करे कि कोई पता चल गया हो, फ़ोन वगैरह किसी को आया हो, मिल जाए वो। बस ये परेशानी बनी हुई है सबके लिए। बहुत ज़्यादा। रात को जैन की हमें कह रही थी कि आपके वहाँ मसला बना हुआ है, आप कोशिश करें कि जल्दी ढूंढें। फिर जो है ना मेरे बेटे की शादी है, मैंने कहा कि अगर भाभी मिल जाएगी तो हम आएंगे, अगर वो नहीं मिलेगी तो हम नहीं आ सकेंगे। अल्लाह खैर परेशानी करे। बहुत ज़्यादा बनी हुई है ना। हम फिर भैया नीव को अकेला कैसे छोड़ पाते इस हालत में। हाँ वो बेचारा कितना डिस्टर्ब है जानी तौर पे। और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी उन तमाम बहन भाइयों का जो जिस तरह की भी सोच रखते हैं। बस क्या कह सकते हैं उनके बारे में, किसी का जहन माइंड तो चेंज नहीं कर सकते ना, हर किसी का अपना माइंड है। हाँ, हर किसी का अपना अपना दिमाग। कोई समझता है कि ये व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे व्यूज़ के लिए हम इस तरह का जो कैसे बोल सकते हैं। कोई अपनी बेबी और बेटी के लिए भी इस तरह करता है व्यूज़ के लिए, तो इस तरह की बातें ना किया करें। हाँ, पहली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं भाई हनीफ की। वो बेचारा पहली वीडियो भी उसमें भाभी थी, वो रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ जो ना ये हाल हो रहा है, मेरे साथ जो ना अच्छा नहीं हो रहा, वो कह रही है वीडियो में। पहली वीडियो तो उनकी लगी हुई है, हाँ भाभी बिल्कुल, के साथ ही लगी हुई है। लेकिन भाभी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। लोगों की बातों से दिल बर्दाश्त होकर मतलब अपना घर छोड़ दे, इस तरह नहीं करना चाहिए। उसने गलत किया है, सबको बस परेशान किया है। उस टाइम बेचारी गुस्से में, जब गुस्सा होता है ना तो पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा नुकसान ही देता है ना। गुस्सा कहते हैं कि हराम है, तो गुस्सा नुकसान ही देता है, वो गलत काम करवाता है। तो गुस्से पे इंसान को काबू रखना चाहिए। इतना ज़्यादा यार दिमाग बंदा ना वो करे इस तरह का काम। लेकिन आपके सामने माशाल्लाह बहुत समझदार है भाभी, बहुत ज़्यादा समझदार। लेकिन समझ नहीं आ रही यार उसने इस तरह का क्यों कदम उठाया, क्यों कदम ये उठाया, गलत कदम उठाया उसने। यही तो समझ सब नहीं पूरा आ रही। खानदान परेशान है, घर वाले परेशान है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। बस अल्लाह ताला खैर करे। कभी आए हैं यही परेशान ये करते हैं, इतना परेशान करते हैं कौवे। बहुत ये ज़्यादा मक्खन के लिए तकरीबन आए हुए हैं। 3 कौवे आ गए और कौवों को वो बुला रहे हैं कि आप भी आ जाए, हम आए हैं।
चलें जी, बस 1 मिनट तक जो है ना ये रेडी हो जाएगा। इस तरह ना करो, बुझ जाएगी फिर। नहीं ये अभी जल रही है। यही जल जाए बस। हाँ ये जल जाए फिर रोटी लगेगी हाँ, इंशाल्लाह फिर ताला। वो कभी आ गए। तो वाह, ये इतना ये बहुत परेशान ज़्यादा करते हैं ना। नीचे बैठकर बंदा इजी से नाश्ता करता है। 4 PM मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि साहब जो है एक ही जगह पे आप बैठ जाते हाँ, क्योंकि नीचे बैठकर खाना जो है ना वो सुन्नत भी है, सवाब भी होता है। 4 पहियों पे बैठ के जो है ना वैसे खाना नहीं खाना चाहिए। ये लें जी, हैं। लाली भी आ गई है। ये तो डरते भी नहीं है, बात भी नहीं सुनते। बिल्कुल भी नहीं डरते। अगर डरते हुए तो आपको पंजे लगाते, ये नहीं डरते। नहीं, आप नहीं लगाते, वो उनके बच्चों का टाइम होता है ना, जब बच्चे निकल रहे होते हैं या अंडे इनके होते हैं, तो उस टाइम जो है ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को। ये पंजे लगाते हैं, कोई भी गुजर रहा होता है ना रास्ते पे, तो ये आके जो है ना ऐसे सर पे पंजे लगाते बस हैं। सब पोछा लगाती हूँ, ये जलती रहेंगी, मैं रोटी लगा दूँगी। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रोटी बढ़ाई जा रही है जी, बस ये भी रेडी हो चुका है माशाअल्लाह। ये आ गई जी दूसरी रोटी। पक गई है पहली रोटी। हाँ जी, तंदूर के ये फायदे हैं। जो ही तंदूर गर्म होता है ना, बस फटाफट रोटी लग जाती हैं। हाँ। टाइम नहीं लगता इन पे। ये पहली रोटी जो है ना इस तरह होती है, इसकी वो ब्लैक पे आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि फिर नहीं तंदूर आएंगे। ज़्यादा गर्म होता है ना। हाँ। जी अभी भी दूसरी रोटी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आगे जी हमारी रोटी, बाकी सब जो है ना नाश्ता इधर कर रहे हैं, तो मैं बस लस्सी के साथ नाश्ता कर ये लस्सी आपकी बनी हुई है। देसी नाश्ता रेडी है। किसी बहन भी ने करना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाए हमारे घर। लस्सी भी रेडी है, मक्खन से मक्खी रोटी भी रेडी है, साथ में थोड़ा सा सालन भी पड़ा है आलू का। आज हम प्यारे बहन भी है, जिसने भी मेरे साथ नाश्ता करना है, नाश्ता बिल्कुल रेडी है, लस्सी भी तैयार है और मक्खन भी लग चुका है रोटियों पे। हाँ जी, तो नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया जी, और अब हम जा रहे हैं हनीफ भाई के घर, और उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम वहीं पर निकलेंगे। वो जो उनके रिश्तेदार बता रहे थे, जहाँ पे उनको पता चला है कि शायद वहाँ पे हो सकता है, वो किसी ने फ़ोन अल्लाह किया था। करे कि वहीं पर हो, अल्लाह करे वहीं पर हो, सही सलामत हो दोनों आमीन माँ बेटे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ये दुआ है, जैसे हम जाएं और खाली हाथ ना वापस मिलें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको की ज़ात लेकर ही आए। बेहतरी फरमाएगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से कैमरा बंद करते हैं, आगे चल के फिर ऑन हाँ करेंगे। जी। अच्छा, कमेंट्स जो आ रहे हैं ना, हर बंदा अपने माइंड का कमेंट करता है। तो कुछ कमेंट्स आए हैं मेरी वीडियो पे, रात वाली वीडियो पे मैंने देखा। पहला कमेंट ये था कि अगर हस्बैंड बीवी के साथ सही हो तो कभी भी बीवी ऐसा काम नहीं करेगी। और दूसरा कमेंट ये था कि वो मुझे याद नहीं सही तरह से, 1 मिनट में देख लो। तो हर बंदा अपने माइंड का ही कमेंट करता है, अपने माइंड वाली बात ही करता है। पहली बात ये है कि हनीफ भाई ने ऐसा क्या जुल्म किया अपनी बीवी के साथ, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, गलत कदम उठाया। तो इस तरह के ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो प्यारे भाई, आपने शायद पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आप चेक कर लिया करें, चैनल का विज़िट कर लिया करें, वीडियोस वगैरह देख लिया करें कि आखिर मामला क्या चल रहा है, असल बात क्या है। वो हनीफ भाई का किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हुआ भाभी के साथ। वो जो हनीफ भाई के रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके करीबी रिश्तेदार, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें की हैं कि ये बेहयाई फैला रहे हैं, टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो तरह तरह की पता नहीं कौन कौन सी गलत बातें उन्होंने की हनीफ भाई के रिश्तेदारों ने, करीबी जो रिश्तेदार थे। तो फिर भाभी दिल बर्दाश्ता होकर, हनीफ भाई की जो वाइफ है वो दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ से जो है ना, पहले उसने हनीफ भाई को कहा कि आप क्यों नहीं बात वीडियो भी करते। लगी हुई है। हाँ, वीडियो भी लगी हुई उनकी, आप क्यों नहीं बात करते, उन्हें क्यों नहीं समझाते, वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना बातें हुई हैं मियाँ बीवी में। तो उसके बाद जो है ना फिर भाभी ने बैग वगैरह, कपड़े वगैरह बांधे, उसने कहा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ अपने मैके। तो हनीफ भाई फिर मेरे पास चला आया, क्योंकि हमारा काम होता है फलाही, तो सारा दिन हमारा फील्ड में गुजरता है।
تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے پاس چلا آیا, ہم اپنے کام پہ نکل گئے, اور جب شام کو گھر واپس گیا تو نہ بھابھی تھی اور نہ ان کی بیٹی شیزہ, وہ معصوم سی بچی ہے, 2-2.5 سال ان کی ایج ہے نا. ہاں 2-2.5 سال. پھر بیچارے نے ادھر ادھر پتہ بھی کیا, کالیں کی, ہر جگہ سے پتہ کیا, کالیں وغیرہ کی, کہیں سے جو ہے نا ان کا پتہ نہیں چلا. اور کتنے دن ہو گئے ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں, نہ ہی وہ اپنے میکے گئی ہے اور نہ ہی یہاں پہ جو رشتہ دار وغیرہ تھے سب گھروں سے ہم نے پتہ کر لیا ہے, کہیں پر بھی وہ نہیں تھی. تو اصل معاملہ یہ تھا. چلیں یہاں سے جو ہے نا کیمرہ بند کرتے ہیں, میرے چاچا کا گھر آ گیا ہے, تو آگے چل کے پھر باتیں ہوتی ہیں آپ سب سے. تو اصل معاملہ یہ تھا میرے پیارے بھائی ہو یا سسٹر ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے, جس کا ٹائم آ رہا ہے وہ جا رہا ہے اس دنیا سے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, اللہ تعالیٰ منزل آسان فرمائے. اعلان ہو جائے پھر بعد میں بات ہوتی ہے. نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے, جس کا بھی ٹائم آ رہا ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. تو ہم پہنچ چکے ہیں انیب بھائی کے گیٹ کے اوپر. چلو اندر پتہ کرو, کیونکہ ان کی بہو جو ہے نا وہ واپس آ گئی ہے, تو اس لیے جو ہے نا پھر ایسے کیمرہ آن کر کے ہم نہیں جا سکتے اندر. ہم اندر پہنچ چکے ہیں جی, اور انیب بھائی جو ہے نا اس نے ویڈیو شروع کی ہوئی ہے, تو چلتے ہیں ملتے ہیں ان سے. کہ جان بوجھ کے کوئی ڈرامے بازی کرے, کچھ ایسا کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ٹھیک ہو؟ کیسے ہو بھائی, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر جی. اب طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہے. ابھی جو ہے نا کپڑے چینج کیے ہیں 3 دن بعد, تو وہ بھی بس جو ہے نا دل نہیں کر رہا تھا, تو کپڑے گندے میلے ہو گئے تھے. میں نے کہا چلو کچھ چینج کر لیتا ہوں. الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا, طبیعت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جی الحمدللہ. پتہ چلا کوئی فون وغیرہ کوئی کسی سے نہیں, ادھر تو سسرال والوں کی طرف تو وہی فون ہو رہا ہے, بار بار پتہ کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں نہیں. تو وہی جو کل کال آئی تھی اسی کال کی امید ہے. ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سے. ہاں بالکل. تو ہمیں تو اب ذرا جی سابق کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی کوئی ایسے کوئی سراغ ملتا ہے, کوئی پتہ چلتا ہے, تو ہم نے تو بھاگ کے جانا ہے, کیونکہ پریشانی ہے بہت زیادہ. آج 5واں دن یعنی ہو گیا ہے, 4 راتیں گزر چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ الطاف بھائی آ جائے اور بھابھی آ جائے, پھر چلتے ہیں. ناشتہ وغیرہ کیا آپ نے؟ ناشتہ بس وہ بسکٹ کچھ کھائے ہیں 2-3, اور ہاں چائے تھوڑی سی پی لی, اور ساتھ دوائی ابھی کھائی ہے. تو چلے کچھ ایسا بہتر ہے کہ یعنی کہ آج جو ہے نا وہ جو پھوڑا تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے. اس کو بھی جو ہے نا کافی اس کے جو ہے نا تکلیف اس نے بہت زیادہ دی. پس کی وجہ سے ساتھ میں ٹمپریچر ہو رہا تھا, کیونکہ ہاں جی, پس بہت زیادہ ہو رہی تھی نا. تو بس اس کو تو میں نے جو ہے نا سمجھے وہ کر دیا, صفائی کر لی, اور باقی انشاءاللہ اس, اور جب سے صفائی ہوئی ہے کچھ میں اب کھڑا ہونے کے بھی لائق ہو گیا ہوں. کہ اس ٹائم تو یہ حالت ہوتی تھی میں ایسے کھڑا ہوتا تو درد شروع ہو جاتی تھی. پاس تھی نا اس لیے پھر جی تو ہوتی ہے. ہاں جی, چلے الحمدللہ, یہ تو ہوگی, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہاں میں اب گاڑی چلا لوں گا, اللہ وارث ہے. تو پچھلے جو 24 گھنٹے گزرے ہیں نا وہ بہت ہی میرے لیے سمجھ لیں کرٹیکل تھے, بہت زیادہ. میں نے نا اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا اس ٹینشن کو. اب کچھ رات ابو امی سارے آئے, چاچا وغیرہ چاچیاں سارے آ رہے تھے, سب نے سمجھایا کہ آپ حوصلہ کرو, آپ ادھر ادھر جو ہے نا ان کے رشتہ داروں آپ کے پاس چلو, سواری کی سہولت ہے, چلو یہ آپ کی مہربانی ہے, پیٹرول افورڈ آپ کر رہے ہیں. مہربانی نہیں, اللہ مالک ہے. بس بھابھی اور ہاں یہ دونوں مل جائیں ہمارے لیے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی. جی بالکل, اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. باقی طرح طرح کے کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں, جی جس طرح کا مائنڈ اس طرح کی پھر باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی, بے تو شک. باقی دیکھیں یہ ہمارا سوشل میڈیا کا کام ہے. کچھ اس طرح کے بھی کمنٹس آئے ہیں کہ
इतना बड़ा मामला हो गया और इन्हें वीडियो बनाने का होश है। तो हमारा काम है, हमने ये दिखाना है सब कुछ, जो भी हमारे साथ मामलात हो रहे हैं तो हम सब जो है ना बहन भाइयों से हमने शेयर करना है जी। जो भी हाँ जी, जो रियल में हमारी जिंदगी चल रही है वो तो हम शेयर कर रहे हैं। अब अगर कोई उसमें कोई सीरियस ऐसा मामला आ जाता है उसको हम छुपाएं, फिर साफ जाहिर है एक झूठ बोलेंगे उसके साथ 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। जैसा कि अभी मैं ये यानी कि छुपा लेता तो साफ जाहिर कमेंट आने थे कि भी आपके मिसेज साथ नहीं आ रही, शिजा नहीं आ रही, वो कहाँ है, क्या मकसद ये है कि कई बातें होती, फिर एक झूठ के पीछे मैं कई 100 झूठ बोलता। इसलिए जो रियल था मैंने सब सच पहले दिन से ही बता दिया कि मेरे साथ ये मामला हो गया है। हम खुशी हो वो भी शेयर करते हैं, परेशानी हो वो भी शेयर करते हैं। जब सुलेमान की सब हमारी फैमिली का हिस्सा है। हाँ, हर तरह की एक्टिविटी हमने शेयर करनी है आप सब बहन भाइयों से। जो भी हमारे साथ मामलात हमारी जिंदगी में होते हैं वो सब हमने आप सबसे शेयर करने होते हैं जी बेशक। हाँ जी, तो अभी मैं जी यही बात कर रहा था ना कि भाई देखें, बात यह है कि अगर किसी यूट्यूबर के साथ कोई सीरियस मामला हो जाए उसकी लाइफ में, जो रियल में लोगों के दूसरों के साथ भी तो होते हैं, तो हमारे साथ भी तो हो सकता है। हम कोई इस चीज से मुस्तस्ना तो नहीं है, या हमारे ऊपर बिल्कुल सीरियस कोई नहीं आ सकती परेशानी, अल्लाह की तरफ से होती है, किसी भी टाइम किसी बंदे पे आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि उस मामले को भी ड्रामा या ऐसा और ना दें कि भी ड्रामा का एक बंदा परेशान है, बहुत ज्यादा टेंशन है उसके दिमाग में, फिर जो है ना ये बातें वगैरह जब होती है ना तो फिर दिल ज्यादा दुखता तो है। जब ऐसे कमेंट देखते हैं तो फिर बड़ी दिल को तकलीफ होती है। एक बंदा पहले से परेशान इतना होता है, ऊपर से ऐसे। तो देखें जी, सबसे यही मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरों के साथ रियल में परेशानियां बन सकती हैं तो हमारे साथ भी बन सकती हैं। हम वही शेयर कर रहे हैं। और वीडियो क्यों कैसे ना बनाए, वीडियो तो हमने बनानी है, जो बाकी रियल लाइफ है हमारी वो हम शेयर कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे। बेशक। तो चलें जी, अल्लाह खैर रखे, चलते हैं फिर उधर ही वो उसको। हाँ, वो आपको तो पता नहीं है उनके घर का, तो फिर कैसे हम जाएंगे। वो हम इस तरह जा रहे हैं कि पहले चलते हैं उधर ही, वो जिसकी जो है ना बच्ची की उधर वो शादी हुई है ना, अच्छा, पहले तो कोशिश करते हैं उसको साथ ले जाने की। वो थोड़ा सा है इस तरह की, मुझे उम्मीद उस पे है नहीं, लेकिन अगर वो ना गई तो फिर दूसरे मामे की मिसेज है, वो जानती है घर, क्योंकि वो शादी बारात पे भी गए थे, वैसे भी आते जाते रहते हैं क्योंकि वो क्लोज है। वो भाभी की मामी है जी, भाभी की मामी है जिसको हमने साथ लेकर हाँ जाना जी, है। अच्छा हाँ जी, उसकी सही है, मिसेज मेरी की मामी है। सही है, ये भी ठीक है। हाँ, उसको साथ लेते हैं, वो घर जानती है। हम उनको यानी कि पहले इन्फॉर्म भी नहीं करते या कॉल नहीं करते। वैसे कॉल वो जो बच्चे ने की थी वो नंबर ही बंद हो गया है। अच्छा, जो उनका नंबर है, जिस नंबर से मैंने पूछा था वो नंबर तो ठीक चालू है उनके घर का, जिस नंबर से बच्चे ने कॉल की है वो नंबर पावर ऑफ है। अच्छा, तो हम किसी को नहीं बताते, कुछ नहीं कहते, हम सीधे चलते हैं, बस वो मामी को लेते हैं साथ, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ चलो, उम्मीद है कि वो चलेगी। उसको साथ ले जाके तो वहाँ जाते हैं इंशाल्लाह, वहाँ डायरेक्ट चुप करके सीधे ही घर जाएंगे और जाके डायरेक्ट अंदर आप खुद भी देखेंगे और वहीं पर ही हूँ, अल्लाह करे वहीं पर हो, हम साथ लेकर आए उन्हें। पूरा खानदान परेशान है, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं, जो शरीक हैं वो तो बातें उनको मौका कुछ अजीब उल्टी बातें शरीक जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना किसी को भी ऐसी कोई दुश्मन भी है ना उसको भी ऐसी परेशानी ना दे, हमारी दिल से दुआ है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, बाकी हर चीज़ को झूठ का रंग ना दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं पहले बहुत परेशान हूँ। हाँ, अगर आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो दिल दुखाने हाँ वाली जी, दिल आजारी भी किसी की ना करें, बिल्कुल ये बात जो है ना मैं बार बार कह रहा हूँ। तो फिर चलें जी, चलें, आ जाए, चलते हैं, मामी को साथ लेते हैं, फिर उस घर की तरफ रवाना होते हैं। सब ने दुआ भी करनी है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे और हमें खुशखबरी मिले, इंशाअल्लाह। कि हम उसे जो है ना उनको ढूंढ के वापस अपने साथ लेके आए। अल्लाह करे ऐसा ही। आमीन, अल्लाह ताला की जात बेहतरी फरमाएगी, अल्लाह खैर करे। जी, तो मैं फिर वो करता हूँ गाड़ी। सुलेमान किधर है, उसको भी कहो वो भी साथ चले। जी जी, सुलेमान भी साथ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। या सलमान का देखते हैं, अगर वो असल में ना उसकी तबीयत थोड़ी अपसेट है, अगर हाँ बेचारे की हालत बिगड़ी हुई है। उससे पूछते हैं, उसको बुखार नहीं उतर रहा, अगर उसका जो है ना वो भी काफी परेशान है बहुत ज्यादा।
اگر وہ کہتا ہے اس کی طبیعت کچھ بہتر ہے تو اسے ساتھ لے چلتے ہیں, اگر نہیں بہتر تو پھر اسے رہنے دیتے ہیں. یہ بھی مامی جو ٹھیک ہے. ساتھ جا رہی ہاں ہے ہاں پھر ہمیں مسئلہ نہیں. ہاں پھر مسئلہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس مامی ساتھ جائے گی. چلتے ہیں وہیں پہنچ کے پھر ملتے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ جو بھی ہوگی سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھی کیا ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہاں جی گاڑی نہیں بھی نکال رہا ہے, بس چلتے ہیں جی, اللہ خیر کرے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں جی بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تو کرم فرمانا میرے مالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حنیف بھائی جا رہا ہے, یہ بھابھی کی مامی مام کے وغیرہ یہ ان کے گھر ہیں جہاں پہ اس دن ہم آئے تھے, تو ان کو لینے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں نا, حنیف بھائی کو پتہ ہے ان کے گھر کا, تو ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ کرے کہ مل جائے. حنیف بھائی جو ہے نا لے کر آ گئے, وہ پیچھے مامی آ رہی ہے بھابھی کی, اور حنیف بھائی پہنچ چکے ہیں جی. تو ہم اپنے شہر کوٹا 2 میں انٹر ہو رہے ہیں, اور یہ شہر کراس کر کے آگے سناوا شہر ہے, سناوا سے آگے ہے گرمانی اڈا اس کو کہتے ہیں, وہیں پر گھر ہے نا حنیف بھائی. ہاں جی جی تو اللہ خیر کرے, انشاءاللہ تعالیٰ آدھے پونے گھنٹے تک ہم پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں. فیملی جی ہم پہنچ چکے ہیں گرمانی, اور یہ ہے محلہ. عورتیں وغیرہ بھی آ رہی ہیں, تو ویڈیو جو ہے نا پھر یہاں پہ بنانا مشکل ہوگا. جی, اور سب بہنوں نے دعا کرنی ہے کہ یہیں پر ہو اور ہم ساتھ لے کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھابھی جان کی مامی آگے جا رہی ہے, یہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں, تو ہم ہیں ان کے پیچھے پیچھے. ہاں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ گھر کہاں ہے. پہنچ گئے, یہی کہہ رہا ہے. چلیں جی اندر چلو. حنیف بھائی اور مامی اندر چلے گئے ہیں جی. تو ہم گھر میں آ چکے ہیں, لیکن بچے سے ابھی پوچھا ہے, بچے نے بتایا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے گھر گئے ہوئے ہیں. ایک ان کے ماما سوئے ہوئے ہیں اندر, ہیں نیند میں, تو پھر ان سے ملتے ہیں, پوچھتے ہیں نہیں بھائی, پھر جگائیں ان کو. بیٹا آپ جگا دیں ان کو. میں خود جگاتا ہوں, وہ بیچارہ بچہ وہ کہتا ہے وہ ماموں ناراض نہ ہو. چلے آپ جگا کوشش دیں. کرتا ہوں کیونکہ ہے تو میرے لیے بھی اجنبی, تو پریشان تو ایک دفعہ ہوں گے جب اٹھاؤں گا. ہاں پہلی دفعہ جو میں ادھر آیا. بالکل بالکل. بہرحال مامی آپ بھی ادھر آ جائیں نا, مامی کو تو جانتے ہیں نا, ہاں ہاں اس طرح وہ پریشان نہ ہو جائے. ٹھیک. چلیں جی اللہ خیر کرے. یہ گھر ہے جی, اور مامی خود ساتھ جائے گی نا, پھر چلیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ رشتہ دار ہیں ہمارے.